Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Tasmai bhavan hayashiras tanuvam hi bebhra Vedadruhav atibalau madhukaita bhakyo Hatvanaya shutiganam charajastamascha Sattvam tava priyatamam tanumatmananti Tanum amananti. My dear Lord, when you appear as Hayagriva with the head of a horse, you killed two demons known as Madhu and Kaitaba, who were full of modes of passion and regretfulness. Then you delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept a form as transcendental, untinged by material qualities. Shri Radha Govinda Ki. So this is talking about a unique incarnation, Hayagriva. There is not much discussion, we have not heard, Hannah. There's one more incarnation. Some places it is worshipped, Hayagriva. I think one of the acharyas, Madhva Sampradaya, Hayagriva used to come. He used to hold like this. Who is that? What is the name? For Vadiraj only? He used to come and he used to personally offer him. Hayagriva, he used to offer him food. Okay. So now the Hayagriva incarnation is quite in the beginning of the creation when Brahma is born and he is with all this, been given by the Lord all the spiritual knowledge. We discussed this previously, just 2 shlokas before. Brahma did बहुत तपस्या करा ब्रह्मा ने, और तपस्या करने से क्या हुआ? Brahma could see the Lord and he got spiritual knowledge. ठीक है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आपने आदि कवि ब्रह्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया. बट देन देयर वर 2 demons, Madhu and Kaitaba, and they stole the knowledge personified from Brahma. It's interesting. And Krishna personally came as Hayagriva and gave back the knowledge to Brahma. So Prabhupada takes an opportunity to illustrate various points here from this pastime. Number 1, Darwin theory is wrong. शुरू में ब्रह्मा थे. अभी आजकल लोग ऐसा बोलते हैं शुरू में बंदर थे और बंदर से आदमी बना. ब्रह्मा बंदर नहीं है. ब्रह्मा बहुत एडवांस्ड है. Very advanced. He is a very, very advanced personality. Rather it is reverse. There was one devotee, his name is Forbidden Archaeology. What is his name? Forbidden Archaeology. Michael Cremo. His devotee name is Dutakarma Das. तो उन्होंने actually क्या किया? He studied the evidence. Just like every day we see the evidence of archaeology. He was an archaeologist. One of the eminent archaeologists in the world. Actually his book people should study. And उसने देखा कि जो specimen, already he said we have in our mind a pattern. Things should happen in that way. And we have got lot of evidence which is against this pattern of Darwin theory. Lot of evidence which does not satisfy. Just like recently they said, now suddenly we got in India a specimen of human form which is 3-4 lakh year old. Now this is confusing us because according to the pattern we had, it should not have come so early. This is just a small instance, very shocking patterns where we have, because what happens, you will not get a bone very old, which is not practical because it dissolves away. What you get actually is artifacts when you look for a long time ago. But we have got artifacts, just like they got in South Africa, some artifacts which are millions of years old.
Not even 1, 200 million year old. How could million year old things were there? So there are many specimens like that. Or impression, like the impression of man's lotus feet and also Darwin's lotus feet together. Not lotus feet, man's feet and Darwin's feet together. Now this is unacceptable because Darwin and man never were together. But this, they have got this specimens. Now how to handle this? So he wrote, because you see, you may give, okay, this human was there, but then how to explain? Presently in modern science, Darwin's theory is the best explanation. But he said, no, there's another explanation. Therefore, when he got all this evidence together, he wrote a book. Scientists, because he is himself a leading scientist, he said, you have to explain now. If it is not evolution, then what it is? He said it's not evolution, it is devolution. Devolution, it has come from top to down, not from up to down. So he had to write a book actually. But true, he is alone. If there are many scientists working together with him, they can put forward the proposal that maybe we got the wrong idea how it has developed. In fact, sometimes they ask that why is it that we don't find so much a human specimen even much old? One reason is it doesn't stay. Lakhs of year old, you only get artifacts or you get some impression. You don't get. But another reason is that we were burning the human bodies. Whole earth 5,000 years ago, whole earth was following Vedic culture. 5,000 साल पहले और उसके पहले तो आदमी को जला दिया जाता था मरने के बाद. राख, क्या करोगे? राख ही मिलेगा आपको, उसको आपको कुछ समझ नहीं आएगा. इक्का दुक्का आपको मिल रहा है, कोई भाई जंगल में मर गया, ये सब, that is not tallying with the general, you're not getting so many specimens. There can be so many explanations. So Prabhupada said, I don't agree to the Darwin's theory. ये पहले बंदर नहीं था, ब्रह्मा था. ब्रह्मा से सृष्टि हुई है, बंदर से नहीं. And another joke is just like आपका कार है. Now your car is say, this is I think 3-cylinder WagonR. ठीक है, some cars are bigger, better cars 4 cylinders. और उसके बड़ी कार 6 cylinder, 8 cylinder, ऐसा होता है नहीं. And this racing cars and all maybe 12 ज़्यादा होगा, ऐसा होता है. तो ऐसा तो नहीं है कि 3 सिलेंडर कार सोची कि चलो मैं 4 सिलेंडर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं होता. The matter has no power to organize itself. Prabhupada says it has no creative capacity on its own. Same engineer who made 3 cylinder can make 4 cylinder. That is there. And another thing is that they see some pattern in design. They generally feel, भाई देखो, it's a pattern. 2-cylinder car, 3-cylinder car, 4-cylinder car, उसके पहले simple, उसके पहले cycle. Some basic principle is same. If you see even the first cars which came, Bhaktivinoda Prabhupada also, we were studying, the first cars and all, he wrote on that. He was Yukta Vairagya, he was very actively preaching. And he was using whatever needed, even vehicle he was traveling. That was surprising though. अभी लोग surprise होते हैं, स्वामी जी कार में जाते हैं, उस समय तो बहुत बड़ा surprise हुआ था. बट गोस्वामी लोगों ने युक्त वैराग्य बोला था और भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद यूज कर रहे थे उसको. सो देयर इज नथिंग, हेजिटेट नहीं करना चाहिए. कृष्ण के सेवा में कोई चीज यूज सकता है, आप यूज करिए. सो यू कैन सी दोज कार्स एंड दीज कार्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज सेम बट देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन डिजाइन. करेक्ट. तो अभी क्या कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं, हो सकता है अपने आप कार इंप्रूव होते रहे. नहीं, सेम इंजीनियर जिसने पहला सिंपल बनाया था उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड बनना तो चला गया. ठीक है. तो सेम वे व्हेन वी सी अ हायरार्की इन डिजाइन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक डिजाइन दूसरा डिजाइन बना है. करेक्ट. बेसिक सेम ही है. 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, किडनी है, लीवर है, ये बेसिक जानवरों में भी है, हम में भी है. तो लगता है ये तो हायरार्की ऑफ डिजाइन है, एक दूसरा बन गया. नहीं 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 नहीं, सेम इंजीनियर ने बनाया. करेक्ट. That is the point. Same engineer, that is Brahma. We see hierarchy of design. So Prabhupada does not agree first with Darwin theory. Second thing Prabhupada does not agree is that Mayavada theory. देखिए प्रभुपाद जी का नाम है नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष. Generally people sing Saraswati. It is not Saraswati, it is Saraswate. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी. ना निर्विशेषा को तो हो गया अभी हैंडल. शून्यवादी सॉरी निर्विशेषा वी डिडंट डू. ना शून्यवादी इज द साइंटिस्ट एंड द बुद्धिस्ट जो बोलते हैं भाई
शुरू में शून्य था, कुछ नहीं था, एक अंधकार था, सब कुछ आ गया. निर्विशेष आलोक, Prabhupada is also attacking them. He is saying that how do you say God doesn't have form and qualities? Now God, Hayagriva, took a beautiful form. Even though वो घोड़े वाला है, अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर होता है. भगवान का जो भी रूप है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल. जैसे कोई सुअर देखता है, क्या बोलता है? छी छी. और द लॉर्ड कम्स एज वराह, इट इज वर्शिपेबल. भगवान का रूप है वराह अवतार. सिमिलरली हायग्रीवा इज ऑल्सो वर्शिपेबल. Narasimha is also worshipable. So these are all transcendental forms of the Lord. It's a wrong notion. अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम. भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं मूर्ख लोग ये गलत समझते हैं. जब मैं इस दुनिया में आता हूँ लोग मेरे को गलत समझते हैं. बट कृष्णा ऑलवेज इज ट्रांसेंडेंटल टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड ही मेंटेन्स हिज स्पिरिचुअल पोजीशन. जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु, वो भी भक्त के रूप में आते हैं, तो अभी हमारे जैसे नहीं बने. ही इज स्टिल ट्रांसेंडेंटल. ये हम लोग, दिस आवर कैपेसिटी इज नॉट देयर, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे. दिस इज आवर मिस्टेक. ठीक है. अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मोहभूत महेश्वरम. हमारा ट्रांसेंडेंटल नेचर लोग समझ नहीं पाते. दिस इज कृष्णा इज अनदर पॉइंट. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग Prabhupada says, look at this, Krishna protected the devotees. Devotees always minimum. Bhakt matlab वो सत्वगुण is minimum. Rajoguna tamoguna is cannot be a devotee, because Shastra Prabhupada says as much you may advertise, you cannot be a devotee in Rajoguna tamoguna. Correct? Foolish and passionate, Prabhupada says, cannot be a devotee as much he may advertise. Possible nahi hai. Because bhakti will be manifest starting from Sattva-guna. Okay, this is clear? Bhakti is manifest starting from Sattva-guna. Now, how do you define a demon? How do you define a gentleman? Is a gunas. बहुत लोग बोलते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ. Honestly speaking, हम अच्छे आदमी नहीं हैं. अच्छा आदमी होना बहुत बड़ा चीज़ होता है. सबके दिल में ये मैं बहुत अच्छा आदमी. कोई अच्छा आदमी नहीं है हम में से इधर. अच्छा आदमी मीन्स यू शुड बी इन सत्वगुणा. वी आर नॉट इन सत्वगुणा, सो वी आर नॉट गुड पर्सन. एवरीबडी इमेजिन्स ही इज अ गुड पर्सन. सभी लोग सोचते हैं मैं अच्छा आदमी. कह रहे हैं बट आप इसको स्ट्रिक्टली एनालाइज करो, वो सत्वगुण में है नहीं तो अच्छा कैसे हो गया? अच्छा मतलब सत्वगुणा. इफ यू आर नॉट इन सत्वगुणा, यू मे इमेजिन यू आर गुड, यू विल एक्चुअली डिस्टर्ब अदर्स. इज अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट और नॉट? रजस एंड तमस गुणा इज कॉल्ड अ डीमन. What is demon? Rajas and Tamas. Actually we are demon now. आप भगवत गीता में चैप्टर पढ़ो डिवाइन एंड डेमोनिक, खुद देख के लगता है यार मैं तो डिवाइन नहीं हूँ, मैं तो डेमोनिक हूँ. खुद किसी को ऑनेस्टली देखेगा, पापा these are all qualities I have of demon. I do not have qualities of divine. So ठीक है, this is another point which is very clear. Divine and demonic is not based on our assumption. सभी सोचते हैं, गुंडा भी सोचता है, चोर भी सोचता है, जो हत्या करता है वो भी सोचता है, सभी सोचते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ. अच्छा आदमी बनना पड़ता है. अच्छा बनने के लिए जस्ट लाइक कल डिस्कस किया था, घनघोर तपस्या करनी पड़ती है तब अच्छे आदमी बनते हैं. कह रहे तपस करना पड़ता है सब बैठ के, इसीलिए घमंड आता है. हाँ, इंद्रिय भोग कर लिया. हम लोग को घमंड किस चीज़ का? एक्चुअली इंद्रिय भोग दक्ष एक्सपर्टली अगर इंद्रिय भोग कर लें अपने को, हम घमंड मानते हैं. क्योंकि भगवत भक्ति करके घमंड नहीं आता. भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं घमंड नहीं हो सकता आपको. भगवान की सेवा में आनंद मिलता है, आदमी को बहुत ही खुशी मिलती है और उसको समझ आ जाता है कि वो कितना तुच्छ है. घमंड तो आता है इंद्रिय भोग करके. हाँ, मैंने आम खा लिया, मैंने केला खा लिया, तब घमंड आता है. इंद्रिय भोग करके घमंड आता है, भगवान की सेवा करके घमंड नहीं आ सकता. सो घमंड किसको आता है? जो आदमी इंद्रिय भोग में लगा रहता है, उसको उसका अहंकार बढ़ता रहता. वो सोचता है मैं दक्ष हो गया. जैसे दक्षा जब शिव जी को मिला था बहुत घमंड था उसको. किस चीज़ का घमंड था उसको? शिव जी को तो कोई घमंड नहीं था, वो तो भगवान के परम भक्त हैं. वो भगवान के समाधि में लगे हुए थे और वो इंद्रिय भोग कर करके घमंड उसका फैलता जा रहा था. और असेंबली में आया, मतलब किस चीज़ का अहंकार आपको? इंद्रिय भोग करने का अहंकार. मैं ऐसे एक्सपर्टली इंद्रिय भोग करते मैं. और अंदर आया तो शिव जी बैठे थे, वो मग्न अपनी भगवान की लीला में. और वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं है वैसे दक्षा के आने में उठने में. और शिव जी की पोजीशन देवताओं से बहुत बड़ी है, लेकिन उसको मन में यही था ये मेरा क्या है, हाँ मेरा दामाद है बेशरम, उठा नहीं, मैं आया तो. और गुस्सा हो गया और फिर श्राप किया, फिर काउंटर श्राप, ये सब तमाशा हुआ.
बट शिव जी शांत रहे उसमें, उनको कोई गुस्सा नहीं आया। उनको गुस्सा तब आया था जब उनकी बीवी ने सती करा, तब उनको गुस्सा आया था उस बेवकूफ़ी की वजह से। फिर उसको उन्होंने मरवाया, लेकिन तब तक उन्होंने शांत थे, छोटे अपराध को उन्होंने नहीं लिया। सो एनीवे द पॉइंट इज दैट रजस तमस गुण में घमंड आता है, सत्व गुण में घमंड नहीं आता। इसलिए ब्राह्मण को घमंड नहीं होता। रजस तमस, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बहुत घमंड रहता है। करेक्ट, क्षत्रिय को घमंड रहता है हमेशा, प्राइड, क्योंकि ऐसे मजा कर रहा हूँ, इतनी रानियाँ मेरे पास है, मेरे पास किला है। घमंड किस चीज़ का? वैश्य को घमंड है, ब्राह्मण को किस चीज़, उसका कुछ है ही नहीं घमंड किस चीज़ का करेगा, है ही नहीं। वो झुग्गी में बैठा रहता है, हरे कृष्ण, उसको क्या घमंड, उसको कोई घमंड नहीं होता। घमंड होता है जब आप इंद्रिय भोग करते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस पॉइंट। एंड अनदर थिंग, रजस तमोगुण होने में हम अपने को अच्छा आदमी नहीं बोल सकते। हम अच्छे आदमी तभी बनते जो सत्वगुण हमारे दिल में कल्टिवेट होता है। तो नाउ अभी सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कि प्रभुपाद has said two things he has attacked in this. Number one, he attacked the शून्यवादा and he is also attacking निर्विशेषवादा, कि भगवान का जो रूप है बहुत आध्यात्मिक है, दैविक है, बहुत सुंदर है। ठीक है, कोई भी रूप हो भगवान का is always worshipable. And the last point है प्रोटेक्शन, कृष्ण प्रोटेक्शन करते हैं। वी कल्टिवेट सत्वगुणा, वी कल्टिवेट भक्ति, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, सुरक्षा रहेगी। ये हमेशा भक्त के दिल में अनुभूति होती है, इसलिए वो बहुत खुश रहता है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे, तो उसको डर नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, खुश रहता है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी का हाथ पकड़ के चलता है, उसको टेंशन थोड़ी है, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो हाथ पकड़ना होना चाहिए। अगर आपको पकड़ा नहीं है तो सेम वे आभास होता है भक्त को, मैंने भगवान का शरण लिया, उसको चिंता छूट जाती है, कोई चिंता नहीं, खुश रहता है। ठीक है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। प्रभुपाद जी बोलते देखो ब्रह्मा को सुरक्षा करा, प्रहलाद महाराज को भी सुरक्षा किया था। ठीक है ना, कृष्ण ने भगवद गीता में गारंटी किया है, कौन्तेया प्रतिजान ही नवे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन जा डिक्लेयर करते नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को कुछ नहीं होगा कभी, मैं सुरक्षा करूंगा। कह रहे, तो ये भीष्म भी तो युद्ध में देखते हैं, जब युद्ध हो रहा था तो ही सीज कृष्णा एंड हमेशा अर्जुन को प्रोटेक्शन, कृष्ण जी वो चिंता में थे इसको कोई छुएगा नहीं। करेक्ट, तो दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन वी शुड हैव, बट वी हैव टू बी सिंसियर। जस्ट लाइक द्रौपदी ऑल्सो कृष्णा प्रोटेक्टेड, वी हैव टू बी सिंसियर, डेफिनेटली अवश्य रक्षिवे कृष्णा। So this should be, and our real danger is, Prabhupada says, human form of life is the only opportunity. He reminds on this shloka we saw in the purport, it's the only opportunity. Birth after birth we are roaming out, and it's an opportunity. First thing we have to understand, we are in a uncomfortable position. Like Sanatan Goswami asked Lord Chaitanya, के आमी कौन हो भाई, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ? जैसे कोई कुत्ता है, खाना खाने जाता है, ठीक है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या मिलता है? डंडा, खाना नहीं मिलता, डंडा। फिर जाता है ब्रेड लेने के लिए, फिर मिलता है पत्थर। तो उसको इतना दिमाग नहीं समझने के लिए क्या जीवन है, मैं तो ब्रेड के लिए गया था और ये डंडा पत्थर क्यों आ रहा है तो जैसे कुत्ते को ऐसे डंडा पत्थर मिल रहा है, हमको भी ऐसा ही हो रहा है। हम भी इंद्रिय भोग के लिए सोच रहे हैं और उधर 50 लोग डंडे लेके पीछे भाग रहे हैं मेरे। मैं तो इंद्रिय भोग सोच रहा था, उधर 50 लोग डंडे पत्थर लेके भागे। अभी कोई नहीं हुआ, कहीं पे मार दिया किसी को किसी ने, है ना। वो तो इंद्रिय भोग के लिए सोचा था मैं लड़की से शादी करूंगा, किसी के पीछे भागा और उसके 50 लोग आ गए डंडे लेके, एंड somebody died also. So very unfortunate, but this is the nature of this world. I am thinking I will enjoy, but उधर लोग पत्थर मारने आ जाते हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई डंडा मार रहा है। This is the nature of this world. So person should question, अरे मैं तो आनंद करना चाहता हूँ, ये लोग मेरे को डंडा क्यों मार रहे हैं? जैसे सेम कुत्ता, अब कुत्ता तो समझ ही नहीं सकता है क्या हो रहा है भाई, समझ सकता है वो नहीं। मैं तो क्या जीवन है, मैं, हाँ हमारा जीवन है, क्या जीवन है मेरा। सो दिस ह्यूमन लाइफ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ देखो, इस भौतिक लोक में आप खाली एक पर्पस के लिए हो, आप सोच रहे हो किसी तरह मैं इस दुनिया में खुश हो जाऊंगा, इसलिए हो। जिस दिन ये होप चलेगी सीधे वैकुंठ धाम चले जाओगे। कह रहे हमारी कुछ होप है, कुछ एडजस्टमेंट होगा, हम खुश हो जाएंगे। तो ये आपको शास्त्र सुन के, आचार्यों का शरण लेके, भगवान की सेवा करके
धीरे धीरे एक दर्शन आएगा कि इस दुनिया में खुशी नहीं है, फिर आप शांत हो जाओगे। आप समझ रहे हैं? हमारी सारी प्रॉब्लम इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, हम यहाँ पे खुश हो जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। भगवत धाम जाके शांति मिलेगी, उस तब तक शांति नहीं है। सो दिस अपॉर्चुनिटी हमारा ह्यूमन लाइफ में है, ठीक है। एंड वी शुड विथ फुल डिटर्मिनेशन कल्टिवेट स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए सत्वगुण कल्टिवेट करना पड़ता है, पाप कर्म से दूर रहना पड़ता है, जीवन को शुद्ध रखना पड़ता है। तब धीरे धीरे वी विल कल्टिवेट स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज विजडम कम्स ऑनली इन सत्वगुण। मैं एनालाइज करता स्टूडेंट लाइफ में भी आजकल रटते हैं खाली। जितने भी स्टूडेंट को मिलता है क्या करते हो सर, हम रटते हैं। रटना मतलब इन रजोगुण तमोगुण में विजडम नहीं आता, सत्वगुण में आता है। ओह, बिकॉज सत्वगुण में आदमी पढ़ के सोच सकता है, ऐसा है। रजोगुण तमोगुण में सोच नहीं सकता वो, बस उसको कुछ समझ नहीं आता, रट के। अनदर थिंग आई वाज एनालाइजिंग, दे स्टडी ओनली नोट्स। जितना भी एटलीस्ट इंजीनियरिंग आई हैव गॉन, दे ओनली स्टडी नोट्स पढ़ के यू नेवर गेट द फील, रुचि ऑफ द सब्जेक्ट, करेक्ट। इवन व्हेन यू आर स्टडीइंग भागवतम, many people have written now notes. That is Chaitanya Charitamrita abridged, Shrimad Bhagavatam abridged. You can study that for some summary, आपको कुछ काम करना है. But otherwise, you will not get feel of the book unless you read the book. Correct? That's how Prabhupada advised us. Correct? आप समझ रहे हैं? Notes पढ़ के काम नहीं चलता. You should read the books, either spiritual or material. When you read these books, then you get a feel of the, because author, any author, maybe material or has a feeling of the, he has a ruchi. He is writing with so many details, he is writing about the subject, and then you have a feeling for the subject, then you enjoy. Today that is not there. So the same way, if you want to cultivate even material knowledge, you need sattva-guna. Correct? So even spiritual knowledge, definitely you need sattva-guna. Then you can enter into spiritual understanding, and then human life will be fruitful. Because with wisdom, we don't want knowledge. Somebody was telling very interesting. Knowledge is forgotten. जैसे किसी को बोलो MBBS पढ़ा था, अभी बताओ एक शब्द याद नहीं होगा, लेकिन कोई विजडम वो डेवलप किया था उस समय वो याद रहता है. Knowledge you may forget, wisdom you never forget. Some darshan you got. Oh, even in material subject you'll never forget that. ठीक है? So spiritual subject में also we are having so much knowledge, that's all theory. But you develop realization, that will never go away. And at the time of death, we need realization, not theory. आपको faith, yes, I am undergoing an extremely painful condition now, which you have not experienced. It is said 40-50 हड्डियाँ टूटे ऐसा दर्द होता है इकट्ठा. No problem. But Krishna will definitely protect me. That is needed. Krishna will, and then the pleasure of serving of Krishna, that is independent of the gross body and mind. Okay? There we are situated and we are seeking Lord's protection. My Lord, I am at your shelter. Please take care of me. So that faith has to develop. जैसे बच्चा नहीं होता, उसको चोट लगती है, मम्मी, तो मरने तक वो नहीं रहना चाहिए, मरने तक कृष्णा आना चाहिए. That is the change. We should be able to depend on Krishna. Therefore, life में छोटे छोटे एग्जाम होंगे. Then you can see whether I was able to remain peaceful. अगर नहीं तो क्या होगा, बहुत विचलित हो जाएंगे. जैसा शरीर डेवलप होता रहेगा, we will become more and more vigilant. But if you advance in spiritual life, then you will not become vigilant. We will be very peaceful. So Krishna थोड़ा थोड़ा surprise quiz लेते रहेंगे. But then finally we take completely shelter of Krishna and reach his lotus feet.